Students, today we will discuss about very important topic of economics, that is money supply. Student, being the student of economics, it is very important for you that you must think that what are the sources of money supply in our economy. So basically there are three sources of money supply in economy. First one is currency held by the public. Student, public, common man, public held currency in the form of coins and in the form of paper money also. So this is the most important source of money supply in any economy and also in Indian economy. The second source of money supply is DD. DD means demand deposits. Demand deposits of commercial bank with Reserve Bank of India. This is also very important source of money supply in our economy. Student, what is mean by demand deposits? Demand deposits are those deposits that can be withdrawn according to requirement, according to demand. Okay, means that those deposits those can be withdrawn according to requirement as per demand. So those deposits are known as demand deposits. Okay, so demand deposits of commercial banks with Reserve Bank of India is also very important source of money supply in our economy. And next source of money supply is other deposits. In other deposits we can include three types of deposits. In other deposits we can include three types of deposits. First one is deposits of demand deposits of financial institutions with Reserve Bank of India. For example, demand deposits of NABARD with Reserve Bank of India. Okay, and the second deposits under other deposits is demand deposits of foreign central banks with Reserve Bank of India. Okay, and the third deposits are included under other deposits are demand deposits of World Bank and IMF and other international financial institutions with Reserve Bank of India. Okay, student. So in this way, currency, demand deposits and other deposits, these three components are very important source of money supply in our economy. Another point I want to clear you that student, there are two terms, term deposit and demand deposit. Okay, TD and DD. TD means term deposits and DD means demand deposits. So student, I have already explained you that demand deposits are those deposits that can be withdrawn as per demand of the customer, as per requirement of the institutions. Okay, and another term is term deposits. Student, term deposits are those deposits that can be fixed for a particular period of time. Okay, for example, if we have fixed deposit, okay, so fixed deposit is also example of term deposits. So student, we can issue checks for demand deposits, but we cannot issue any check for term deposits. Okay, we cannot issue any check for term deposits. Suppose I have my saving account in bank. Okay, so I can issue check against saving account, but I cannot issue any check for my fixed deposit. Okay, means you can say term deposits are not checkable, but demand deposits are checkable. This is the first difference. And okay, and another difference is that student, term deposit cannot be included in money supply. Okay, demand deposits are included in money supply, but term deposits cannot be included in money supply. Okay, student. So in this way, today we have discussed about the three important component of money supply: C for currency, DD for demand deposits, and OD for other deposits. And we have also discussed about the difference between term deposit and demand deposits also. तो बच्चों, आज हम लोग मनी सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं. बच्चों, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें आखिर ये रुपया और सिक्के आते कहाँ से हैं ना. हम लोग जब भी जाते हैं कोई सामान लेने, हम लोग रुपए का यूज करते हैं, सिक्कों का यूज करते हैं. हमारी इकोनॉमी में आता कहाँ से, इसकी सप्लाई कहाँ से होती है? क्योंकि बच्चों, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानना पड़ेगा. और आगे चलकर एक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, है ना. तो उस मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बेस 11th क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है. आपके सिलेबस में थोड़ा सा रखा गया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट. तो इसीलिए ताकि जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसका एक बेस तैयार हो सके.
तो बच्चों मनी सप्लाई कैसे होती है, अर्थव्यवस्था में कहां कहां से नोट और सिक्के आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसका मनी सप्लाई का जो सबसे पहला सोर्स है वो है करेंसी हेड बाय द पीपल, है ना। बच्चों पब्लिक के पास जो सिक्के होते हैं या जो रुपया होता है वो मनी सप्लाई का सबसे पहला सोर्स है ना। हम लोग के पास सिक्के होते हैं, रुपया होता है, वो हम लोग खर्च करते हैं, इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बनी रहती है। और बच्चों दूसरा सोर्स क्या है मनी सप्लाई का, दूसरा सोर्स है डीडी। डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, ठीक है, या आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, ये जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं बच्चों, तो ये अपने डिमांड डिपॉजिट्स, ये अपने डिपॉजिट्स जो होते हैं वो RBI के पास रखते हैं और जरूरत पड़ने पर ये क्या करते हैं, RBI से वो पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विद RBI, ये भी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और तीसरा है बच्चों ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट्स। अब बच्चों ओडी में 3 तरह के डिपॉजिट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में बच्चों 3 तरह के डिपॉजिट्स आते हैं। पहला है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI। मतलब आपको पता है बच्चों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नाबार्ड की बात लीजिए आप, है ना। नाबार्ड जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो बच्चों जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका पैसा भी RBI के पास रहता है ना। तो जो उनके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो भी मनी सप्लाई का अच्छा माध्यम है, वो है, ठीक है। वो ओडी में, ये ओडी का फर्स्ट पार्ट है। ओडी का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, मतलब अदर डिपॉजिट्स में, मतलब अदर डिपॉजिट्स में एक तो नाबार्ड या इस तरह दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा RBI के पास रहता है वो आता है। और दूसरा बच्चों क्या है, जो विदेशी बैंक होते हैं, विदेशों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक होते हैं, उनका पैसा भी RBI के पास होता है, उनके भी तमाम डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास रहते हैं बच्चों। तो वो भी मनी सप्लाई का एक अच्छा माध्यम है और ये ओडी का सेकंड पार्ट है। और बच्चों ओडी या अदर डिपॉजिट्स का थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो इस तरह के वर्ल्ड लेवल के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इनका पैसा भी बच्चों बैंक RBI के पास रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ओडी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स, इन तीनों की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार मनी सप्लाई बनी रहती है, ठीक है बच्चों। 2 और टर्म इंपॉर्टेंट हैं, टीडी और डीडी। टीडी मीन्स टर्म डिपॉजिट्स और डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स। बच्चों डीडी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे डिपॉजिट्स जो कि जरूरत पड़ने पर क्या है, विड्रॉ किए जा सके। जैसे अगर मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिमांड डिपॉजिट है। करंट अकाउंट मेरा है तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है, ठीक है। और टीडी क्या होता है बच्चों, अगर सपोज करिए मैंने एक FD बैंक में करवाई है तो वो क्या है, टर्म डिपॉजिट है। मींस ऐसे डिपॉजिट्स जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होते हैं, है ना, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। तो बच्चों ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, अब बच्चों डिफरेंस, बच्चों आपको पता है टर्म डिपॉजिट्स को हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट्स को हम मनी सप्लाई में शामिल करते हैं, लेकिन टर्म डिपॉजिट को हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पर वो क्या है, विड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये अंतर है टीडी और डीडी में, मतलब टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में पहला डिफरेंस क्या है कि डिमांड डिपॉजिट्स को मनी सप्लाई में शामिल किया जाता है, जबकि टर्म डिपॉजिट्स को मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता है। और बच्चों दूसरा डिफरेंस ये है, डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल। यू नो बच्चों, डिमांड डिपॉजिट्स के लिए हम चेक इशू कर सकते हैं। अगर हमारा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है बैंक में तो हम चेक इशू कर सकते हैं, और इस तरह से क्या है, हम चेक इशू कर सकते हैं किसी को भी। लेकिन बच्चों जो टर्म डिपॉजिट होता है उसके लिए हम किसी तरह का चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो ध्यान से देखिएगा, ओके। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।